چڑیا گھر لاہور پنجاب پاکستان میں 1872 میں قائم کیا گیا تھا، جو پاکستان کے سب سے بڑے چڑیا گھر میں سے ایک ہے۔ اس کا انتظام فی الحال حکومت پاکستان کے محکمہ جنگلات، جنگلی حیات اور ماہی پروری کے زیر انتظام ہے۔ آج چڑیا گھر میں 135 پرجاتیوں کے تقریباً 1378 جانوروں کا مجموعہ ہے۔ لاہور چڑیا گھر 2004 میں سازرک کی 5ویں سالانہ کانفرنس کا میزبان تھا۔ لاہور چڑیا گھر دنیا کا تیسرا قدیم ترین چڑیا گھر ہے۔ آسٹریلیا کا ہاؤس آف ویانا چڑیا گھر جو 1752 میں مینیجری کے طور پر قائم کیا گیا تھا، 1779 میں چڑیا گھر کے طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ انگلینڈ کا لندن چڑیا گھر جو 1828 میں قائم ہوا تھا، 1847 میں عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں 1876 میں چڑیا گھر کے طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ لاہور چڑیا گھر لاہور زو کا آغاز لالا میلا رام کی طرف سے 1872 میں لاہور میونسپل کارپوریشن کو عطیہ کردہ ایک چھوٹی سی ایوری سے ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ذخیرے میں اضافہ ہوا اور چڑیا گھر میں توسیع ہوئی۔ اس نے بعد میں عوام کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے کے علاوہ تحفظ، تعلیم اور تحقیق میں دلچسپی لینا شروع کی۔ 2010 تک چڑیا گھر 71 پرجاتیوں کے تقریباً 1280 درختوں اور 136 پرجاتیوں کے 1380 جانوروں کا گھر تھا، جس میں 82 پرجاتیوں کے 996 پرندے، 8 کے 49 رینگنے والے جانور اور 45 پرجاتیوں کے 336 ممالیہ تھے۔ چڑیا گھر کا انتظام 1872 سے 1923 تک لاہور میونسپل کارپوریشن کے پاس تھا، جب انتظام لاہور کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے کر دیا گیا۔ انتظام 1962 میں محکمہ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کو منتقل کیا گیا اور پھر 1982 میں محکمہ وائلڈ لائف اور پارکس کو منتقل کر دیا گیا۔ 1872 میں اس کے قیام اور 1982 میں وائلڈ لائف اینڈ پارکس ڈپارٹمنٹ میں اس کی تبدیلی کے درمیان چڑیا گھر میں بہت کم ترقی ہوئی۔ 1982 کے بعد سے اس نے اپنی نمائشوں، ترتیب اور زمین کی تزئین کو اپ گریڈ کیا ہے اور ایک سیلف فنانسنگ تنظیم بن گئی ہے۔ پچیس جولائی 2005 کو 18 ماہ کی مدت کے ماسٹر پلاننگ، بہتری اور ترقی کے منصوبے کی منظوری دی گئی۔ اسے چڑیا گھر کی دیکھ بھال کمیٹی نے انجام دیا اور حکومت پنجاب کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کی سرپرستی کی۔ اس منصوبے پر تقریباً 202.830 ملین پاکستانی روپے لاگت آئی اور اس کا مقصد سہولیات میں بہتری اور اضافہ کرنا تھا۔ رہنمائی اور تعلیم کے لیے چڑیا گھر کے ارد گرد ہدایات بورڈز، نقشے اور سائن بورڈ لگائے گئے ہیں
चिड़िया घर में मुसलमानों की नमाज के लिए एक मस्जिद भी शामिल है। 2008 में वॉक वेज, कैफेटेरिया और पब्लिक वाशरूम्स की तज़य्युन और आराइश की गई और बुनियादी ढांचे की ताज़ा कारी के हिस्से के तौर पर छतरी वाले बेंच, पीने के पानी के कूलर और नए कचरे के डिब्बे शामिल किए गए। 8 दिसंबर 2010 को ऐलान किया गया कि लाहौर चिड़िया घर की इंतज़ामिया अदाकारा रीमा खान को कैद में जंगली हयात की सफ़ीर बनाने का मंसूबा बना रही है। चिड़िया घर के मौजूदा डायरेक्टर इकबाल खालिद ने बताया कि खान शहरियों में जंगली हयात के मसाइल के बारे में आगाही पैदा करने में मदद करेंगे। ये भी इंकशाफ हुआ कि लाहौर चिड़िया घर दूसरे ममालिक से गैर मुल्की जानवर किराए पर लेना शुरू कर देगा। इससे मकामी लोगों को दुनिया भर के मुख्तलिफ जानवरों के बारे में मजीद जानने का मौका मिलेगा। लाहौर चिड़िया घर अवामी जमहूरिया चीन से 2 द्योहिकल पांडा किराए पर लेने का इरादा रखता है। खालिद ने कहा कि एक बार इसे स्पॉन्सर मिलने के बाद चिड़िया घर की इंतजामिया इस जानवर के लिए चीनी हुकूमत को दरख्वास्त जमा कराएगी, जो दुनिया भर में मकबूल है। चीनी हुकाम चिड़िया घर का दौरा करके पांडों के लिए रहायश और सेहत की सहूलियात का मुआयना करेंगे। खालिद ने कहा, सितंबर 2015 में लाहौर चिड़िया घर की इंतजामिया ने चिड़िया घर में सेहतमंद जैन पोल को बरकरार रखने के लिए 19 नए जानवर लाने के मंसूबे का ऐलान किया। चिड़िया घर के डायरेक्टर हसन अली सखेरा ने यह भी बताया कि चिड़िया घर में वेटरनरी लैब, पैथोलॉजिकल और हेमाटोलॉजिकल लेंस इलाज के कमरे और एक ICU के साथ कायम किया जाएगा। चिड़िया घर शुरू में चंद परिंदों की मदद से शुरू किया गया था, जो कि लाल महिंद्रा राम ने फराहम किए थे। वक्त के साथ साथ जानवरों की तादाद में इजाफा होता चला गया। आज इस चिड़िया घर में तकरीबन 136 मुख्तलिफ इक़्साम के जानवर हैं, जिसमें से 82 किस्म के 996 परिंदे। चिड़िया घर के नाम से तो बच्चा वाकिफ है। नाम से ऐसा लगता है जैसे वहाँ चिड़ियाँ, तोते या दूसरे परिंदे ही होंगे, लेकिन नहीं। चिड़िया घर में तो चौपाए, जंगली दरिंदे, जानवर, चरिंद, परिंद, गर्ज, ये कि हर किस्म के जानवर होते हैं। हर जानवर का एक अपना और अलहदा मजाज होता है, लेकिन सब ही जानवरों में एक बात मुश्तरक पाई जाती है, वो ये कि उन्हें कैद पसंद नहीं, आज़ादी से घूमना फिरना पसंद करते हैं। खुले मैदान, जंगल, पानी और वसी इलाके ही इनकी असल दुनिया है। आप नन्हे मुन्ने दोस्त बड़े शौक से चिड़ियाघर जाते हैं। बंदरों को उछल कूद और तरह तरह के तमाशे अच्छे लगते हैं। रंग बिरंगे तोते, हिरन, नीलगायें, ज़ेबरे और ज़राफ़े बड़े भले मालूम होते हैं। लेकिन चिड़ियाघर में दरिंदे भी तो होते हैं जिन्हें देखकर खौफ आता है, मसलन शेर, चीता, रीछ वगैरह। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, मसलन शेर, चीता, रीछ, जबकि चीता एक चुस्त और चालाक दरिंदा है। जब हम देखते हैं कि जंगल का बादशाह शेर, जिसकी धाड़ने से सारा जंगल लरज़ उठता है, सब जानवर होशियार हो जाते हैं या अपने बचाव की कोशिश करते हैं। वही शेर एक लोहे के पिंजरे में एक तरफ ऐसे लेटा हुआ है जैसे बिल्ली मालूम हो, इसलिए कि ये बेबस होता है। इंतहाई ताकतवर शेर लोहे के पिंजरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह चीते के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा कि वो तेज रफ्तार दरिंदा है, जिसकी रफ्तार तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा है। इंतहाई फुर्ती से अपने शिकार को दबोच लेता है। चीता भी इंसान की अकल और जहानत के सामने बेबस नजर आता है, क्योंकि इंसान इसे अपनी ताकत से नहीं बल्कि जहानत से मात दे सकता है। यही हाल दूसरे जानवरों का है। हाथी जंगल में आज़ादी से घूमते फिरते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में इन्हें सुधाया गया होता है। रीछ सीधा साधा मालूम होता है, जब इसको तंग किया जाए तो ये भपड़ जाता है और हमला करने की भरपूर कोशिश करता है। इन जानवरों और दरिंदों को दूर से देखना चाहिए, इनके करीब जाने की कोशिश मत करें, क्योंकि ऐसे जानवरों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। इनके करीब जाने से कई नाखुशगवार वाकयात पेश आ चुके हैं, लेकिन चिड़ियाघर में उन्होंने इन जानवरों को इस तरह कैद किया हुआ है कि ये इंसान की पहुंच से दूर है और इंसान इनकी पहुंच से दूर है, और बहुत बेबस हैं सारे जानवर ही उधर, क्योंकि ये जानवर आज़ादी के लिए होते हैं। इन जानवरों की ज़िंदगी आज़ाद होती है। पता नहीं किस बदकिस्मती के टाइम ये चिड़ियाघर वालों के हत्थे लग गए और सारी ज़िंदगी कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शेर शेर होता है, लेकिन चिड़ियाघर में आकर शेर बिल्ली से भी नीचे हो जाता है। यही हाल है हर उस जानवर का जो चिड़ियाघर में होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो चिड़ियाघर जाया करें, चिड़ियाघर का नज़ारा करें, जानवरों को देखें और उनके लिए दुआ करें। वो उधर कैद हैं तो वो सिर्फ हमारी सैर व तफरीह की वजह से कैद हैं।
کیونکہ حکومت نے ان کو قید ہی اسی وجہ سے کیا ہے کہ لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، سیر و تفریح کریں گے اور معلومات ملے گی، لیکن ان کا اس میں کیا قصور ہے کہ ان کی زندگی کو زندگی نہیں، ایک قید خانے کی زندگی بنا دی ہے۔ دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔